क्या बस लिम्बिक सिस्टम इमोशंस के बारे में काम करता है? एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर कंटेन्ड इन लिम्बिक सिस्टम? सो अग्रेशन वाला फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है एंड हमें तो पता है कि लिम्बिक सिस्टम में मेमोरी से रिलेटेड भी और भी कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे everyone, welcome back to Pavadin Psychology's YouTube channel. I'm Shravani, faculty at Pavadin Psychology, and I'm glad to meet you guys every Saturday where we discuss important concepts necessary for your psychology entrance exams. आज भी हम ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है फ्रॉम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी या फिर बायोसाइकोलॉजी. Today we are going to talk about limbic system and the important structures that are contained in the limbic system. Do watch this class till the end ताकि आपको पता चले कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स रोल प्ले करते हैं, क्या क्या होता है हमारे ब्रेन के अंदर ड्यूरिंग आवर इमोशनल रेगुलेशन. ओके, so without further ado, let's get into today's class. Let me just quickly tell you about the batches offered by Pavadin Psychology. Okay, so we have batches curated for bachelor's, master's, MPhil, MA clinical psychology and UGC NET JRF या फिर GATE. So do enroll and CVT PG की बैच जो है अभी अभी लॉन्च हो चुकी है. The enrollments have begun, so save yourself a seat. Okay, now let's get into today's topic जो कि है लिम्बिक सिस्टम. जब भी आप लिम्बिक सिस्टम ये नाम सुनते हो तो सबसे पहले मन में क्या आता है? इमोशंस याद आते हैं कि हमारे इमोशंस का प्रोसेसिंग कह लो, रेगुलेशन कह लो, ये कौन करता है? लिम्बिक सिस्टम करता है. लिम्बिक माने क्या? रिंग. So it's a ring-like structure. Okay. But tell me, क्या बस limbic system emotions के बारे में काम करता है? Not necessarily. Yes, in a major chunk, emotion processing का काम करता है. But there are also other kinds of functions that it undertakes. जैसे कि behavior regulation कह लो. Yes, memory formation कह लो, encoding and even consolidation of memories कह लो, motivation का कह लो, decision making बोल लो. Yes, so all these functions are also carried out by limbic system. Even जब हमारा stress होता है, stress आता है, जो fight or flight response होता है, ये भी limbic system से connected होता है. तो आप जब भी ब्रेन को स्टडी कर रहे होते हो तब आपको पता चलेगा कि ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उनका स्पेशलाइजेशन होता है, नो डाउट, बट दे नेवर वर्क इन सीलोस. बराबर, कुछ ना कुछ अदर फंक्शंस, दे आर ऑलवेज फंक्शन इन एन इंटरकनेक्टेड फैशन. यस, एब्सोल्युटली. So it's a complex network of interconnected brain structures that play a role in emotion, behavior, memory, and motivation. Okay, and ये also contributes to higher processes like social bonding, learning, and decision making. Okay, and what are the structures that are contained in limbic system? There's amygdala, hippocampus, hypothalamus, thalamus, basal ganglia, and cingulate gyrus. इन structures को हम deep में पढ़ने वाले हैं. Okay? Yes. And like I said, you guys, कि ये सारे structures together, what do they do? Yes. Process emotional reactions, consolidate memories, physiological drives जो होते हैं, hunger, sleep, sex related, वो सारे regulate करते हैं and obviously are fight and flight reaction. Now, because limbic system is contained with all these functions, अगर limbic system में थोड़ी बहुत भी issues आती है, concerns आती है, then सीधा we face what? Mental health concerns and conditions like anxiety disorders, depression, PTSD, and even addictive behaviors. Yes, तो कैसे वो हम और भी डेप्थ में पढ़ने वाले हैं. अभी हम इतना बात कर रहे हैं लिम्बिक सिस्टम के बारे में, जानते हैं कहाँ पे इसका लोकेशन है? यस, बेसिकली ये आता है बिलो द cerebral cortex या फिर beneath the cerebral cortex, but above the brain stem. Yes, below the cerebral cortex and above the brain stem. यहाँ पे हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है. And now we're going to study all the important structures of it. सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है, जो कि है सिंगुलेट जाइरस, इसको हम लिम्बिक कॉर्टेक्स भी कहते हैं या फिर हम सिंगुलेट कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं. सिंगुलेट माने क्या? सिंगुलेट मतलब एनसर्कलिंग. तो आप ये पर्पल कलर का स्ट्रक्चर देख सकते हो, एक एनसर्कलिंग स्ट्रक्चर है, इसको हम सिंगुलेट जाइरस कहते हैं. इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम. यस, ये पूछा गया था
आपका जो प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था। ओके, नाउ इसका रोल क्या होता है? इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। इट ऑल्सो ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हायर जो सब कॉर्टिकल एरियाज है उन तक भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। एंड इन्वॉल्व इन द पेन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पेन, पेन परसेप्शन जिसको हम कहते हैं, इसमें इसका काम होता है। तो एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट इन डिसीजन मेकिंग, इंपॉर्टेंस इन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द एक्सपीरियंस ऑफ पेन। बेसिकली इतने ही जो फंक्शंस हैं हमें बस याद रखने हैं। ओके, सिंगुलेट जायरस या फिर हमारा लिम्बिक कॉर्टेक्स। ओके, दूसरा पार्ट है जो कि है फोरनिक्स। ओके, जैसे एक हाईवे होता है, हाईवे क्या करता है? कनेक्ट करता है रास्तों को, बराबर। हाँ, एग्जैक्टली वैसे ही हमारा मेजर मैसेज हाईवे कौन है? फोरनिक्स है। ये ग्रीन कलर का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, बराबर, ये फोरनिक्स होता है। इट कनेक्ट्स व्हाट? इट कनेक्ट्स द हिप्पोकैम्पस ओवर हियर टू द मैमिलरी बॉडीज। ये जो छोटे आपको एनसर्कलिंग दिख रहे हैं, ये मैमिलरी बॉडीज होते हैं, इनको कनेक्ट करता है। यस, सो इट्स लाइक अ हाईवे, मैसेज हाईवे। एंड यहाँ से इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है फ्रॉम हिप्पोकैम्पस टू मैमिलरी बॉडीज। तो हिप्पोकैम्पस आपको पता है, हिप्पोकैम्पस में क्या होता है? एनकोडिंग ऑफ मेमोरीज होता है, बराबर। मेमोरीज आर एनकोडेड ओवर हियर and all this is transferred to who? Mammillary bodies. Mammillary bodies जो होते हैं, they are basically responsible for recollective memory. Recollective memory माने क्या? You are able to recall past events. You are able to recall whatever has happened. Yes. तो recall से related जो भी आपकी memory होते हैं उसको हम recollective memory कहते हैं, and that is the function of mammillary bodies. Okay. तो second part हमारा आता है fornix, which is a connecting structure. ठीक है, सही बात। ओके, let's move to the third important part जो कि है सेप्टम। ओके, अभी जो सेप्टम होता है ये बेसिकली हमारे एग्रेशन को इनहिबिट करता है। यस, यानी कि आर अग्रेसिव बिहेवियर आर केप्ट एट अ लो लेवल या फिर केप्ट एट अ मिनिमम लेवल ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू सेप्टम। यस, अगर सेप्टम को डैमेज हो जाएगा तो कहते हैं ना कि बिन कारण के चिड़चिड़ होना। यस, yes, बस इसमें जो थोड़ा ज्यादा होता है। yes, so without any reason the person can get very very angry, क्योंकि aggression inhibition का कुछ वर्क ही नहीं हो रहा है, बराबर। उसको हम सेप्टल रेज भी कहते हैं, सेप्टल रेज या फिर शैम रेज। ओके, so it inhibits aggression, calms aggressions and regulates our fear responses. इतना ही नहीं, it plays a very important role in your pleasure, reward and social bonding. ये काफी ज्यादा एक important pleasure center है, इसको हम कह सकते हैं। yes, it also helps reinforce pleasurable behavior and positive reinforcement. बेसिकली जो जो behaviors हमें pleasure दिलाते हैं उन behaviors को हम repeat करते हैं। yes, that's what we call positive reinforcement. so सेप्टम के पार्ट्स हमने देखे, सॉरी फंक्शंस हमने देखे। ओके, सो अग्रेशन वाला फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड इफ इट इज डिस्ट्रॉयड या फिर इसको इसको कुछ हो जाता है तो सेप्टल रेज हो सकता है, शैम रेज हो सकता है। ठीक है, ओके, अब आते हैं हमारे फोर्थ वाले स्ट्रक्चर पे जो कि है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या करता है? एनकोडिंग ऑफ मेमोरीज करता है, बराबर। यस, hippocampus is a curved structure deep inside the temporal lobe. It's a part of the limbic system. तो hippocampus भी limbic system का काफी important part बनाता है। It is connected to the other limbic areas via the fornix. हमने अभी अभी देखा कि fornix क्या करता है? हिप्पोकैम्पस से इंफॉर्मेशन लेके मैमिलरी बॉडीज को देता है। So it's a connecting part as well. It plays a role in memory processing. Yes. Convert short term memories into long term memories. हम जिसको कहते हैं ना consolidation of memories. कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरीज। यस, जहाँ पे हम क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। यस, तो उसमें इसका काम रहता है। स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर डिक्लेरेटिव मेमोरीज। डिक्लेरेटिव मेमोरीज कौन से होते हैं? डिक्लेरेटिव मेमोरीज वी आल्सो कॉल एज एक्सप्लिसिट मेमोरीज।
यानी यहाँ पे आपकी सिमेंटिक मेमोरी आ सकती है। सिमेंटिक माने क्या, जो भी फैक्चुअल नॉलेज है कि who is the president of India, who is the prime minister of India, and how many planets are there in the universe, या जो भी है, ये क्या है, फैक्चुअल नॉलेज है। तो ये होगी आपकी सिमेंटिक मेमोरी। ओके, तो ये भी डिक्लेरेटिव मेमोरी का पार्ट होती है। और क्या होता है, डू यू गाइस नो, हमने मेमोरी वाले लेसन पे करा था ये। ओके, और क्या होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी में, यस, एपिसोडिक मेमोरी। आपको आपका फर्स्ट बर्थडे पता होगा, या फिर फर्स्ट नहीं पता होगा, एटलीस्ट 10th तो पता होगा। हाउ वाज द 10th बर्थडे एंड हु ऑल केम फॉर योर बर्थडे पार्टी, व्हाट वर यू ड्रेस लाइक। तो ये क्या है, एक एपिसोड की तरह जो मेमोरी हमारे मन में रिकॉर्ड हो जाती है। यस, यू हैव ऑल द डिटेल्स। यस, तो उसको हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं एंड इट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो यहाँ पे हिप्पोकैम्पस में जो है डिक्लेरेटिव मेमोरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। नॉट मच फॉर प्रोसीजरल मेमोरीज, जो भी हमारे स्किल से रिलेटेड जो मेमोरी होती है, मोटर फंक्शन से रिलेटेड जो होती है, उसके लिए इतना नहीं, बट श्योरली फॉर डिक्लेरेटिव। ओके, हाँ, अभी लाइक इवन वी सॉ इन सेप्टम, कि सेप्टम को अगर कुछ भी हो जाए तो सेप्टल रेज हो सकता है। तो अगर हिप्पोकैम्पस को कुछ हो जाए, डैमेज हो जाए, या फिर इसका बायलैटरल रिमूवल, बायलैटरल रिमूवल मतलब क्या, दोनों भी हेमिस्फीयर से अगर हम हिप्पोकैम्पस को निकाल दें तो क्या हो जाएगा, इट कॉजेस एंटीरोग्रेड एमनीशिया। यस, एंटीरोग्रेड एमनीशिया इज अ कंडीशन वेयर वी कैन नॉट फॉर्म न्यू मेमोरीज। यस, ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, देखो, जिनको पुराना जो होता है वो सब याद आता है, बट नए इंफॉर्मेशन को वो नहीं ठीक से स्टोर कर सकते। सो उन्होंने क्या खाया है कल रात को, व्हाट दे हैड फॉर डिनर एंड ऑल, दे कैन नॉट रिमेंबर दैट। यस, एब्सोल्युटली। सो वेयर वी कैन नॉट फॉर्म द न्यू मेमोरीज, इसको हम एंटीरोग्रेड एमनीशिया कहते हैं। रेट्रोग्रेड एमनीशिया जो कि होता है रिलेटेड टू योर पास्ट मेमोरीज, दैट आल्सो हैपेंस टू एन एक्सटेंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है। एंटीरोग्रेड एमनीशिया तो होता है बाय बायलैटरल रिमूवल या फिर डैमेज टू हिप्पोकैम्पस। ओके, तो ये हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, ओके, अब आते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ओल्फैक्टरी बल्ब्स। ओल्फैक्टरी क्या होता है, हमारा सेंस ऑफ स्मेल होता है, बराबर। सो दीज बल्ब्स आर लोकेटेड विद इन आवर टेम्पोरल लोब्स। इसको हम एक इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि कुछ एक ऐसी प्रकार की स्मेल आपने एक्सपीरियंस की है विच ऑलमोस्ट टुक यू बैक टू योर चाइल्डहुड? क्या आपके स्कूल में शायद वैसी स्मेल आती होगी, या वॉट एवर इट इज, या एनी ऐसी पर्टिकुलर स्मेल which like brought a lot of memories? Yes, have you experienced this? If yes, that is olfactory bulbs at play. Okay, क्योंकि olfactory bulbs हमारे लिम्बिक सिस्टम का पार्ट बनाता है। अक्सर वह कुछ ऐसी स्मेल्स होती हैं जिसको हम डायरेक्टली, उससे हमें बहुत सारे मेमोरीज जगते हैं। यस, एब्सोल्युटली, बिकॉज olfactory bulbs are a part of our limbic system. एंड हमें तो पता है कि लिम्बिक सिस्टम में मेमोरी से रिलेटेड भी चीजें होती हैं, बराबर। मेमोरी रिलेटेड फंक्शंस आल्सो हैपन। सो तुरंत आपको वो यादें ताजा हो जाती हैं आपकी, है ना। ओके, सो दैट इज आवर फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कहाँ पे लोकेटेड है ये ओल्फैक्टरी बल्ब्स? विद इन द टेम्पोरल लोब्स। ओके, द सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अमिगडाला। अमिगडाला आपने सुना होगा काफी बार, है ना। ये एक आमंड शेप का स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे लोकेटेड होता है? मीडियल टेम्पोरल लोब में होता है। यस, आई होप आपको 4 लोब्स हमारे पता है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। यस, अभी ये जो होता है अमिगडाला, इट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस के एकदम बगल में ये लोकेटेड है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर इमोशन प्रोसेसिंग, fear, anger, aggression कह लो। yes, links memories with emotions via the hippocampus। क्या आपको ऐसी मेमोरीज याद है, कुछ इमोशनल मेमोरीज, ट्रिगरिंग मेमोरीज, किसी का मतलब एक्सीडेंट ही कह लो, या फिर कुछ बहुत ऐसा अनफॉर्चुनेट हुआ था
जिसको एनकोडिंग की भी जरूरत नहीं लगी थी, स्टिल यू आर एबल टू एकदम विविडली रिकॉल दोज मेमोरीज। यस, एब्सोल्युटली, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैश बल्ब मेमोरीज भी कहते हैं। यस, जिसको एनकोडिंग की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली वी आर एबल टू रिमेम्बर द इमोशनली चार्ज्ड इवेंट्स। क्यों होता है? क्योंकि एमिगडाला जो होता है ये एकदम हिप्पोकैम्पस के बगल में होता है, बराबर। यस, एब्सोल्युटली। तो जो एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस का कनेक्शन है, इसके वजह से द इमोशनली चार्ज्ड इवेंट्स गेट ऑटोमेटिकली स्टोर्ड विद इन आवर मेमोरीज। इसको हम फ्लैशबल्ब मेमोरीज भी कहते हैं। Yes. So like I said, explains why emotionally charged events are remembered more vividly. आपको उस टाइम का मतलब आपने क्या ड्रेस पहना था, कौन कौन लोग थे, ये सारा डिटेल आपको एकदम परफेक्टली याद आता है। Yes. Okay. So amygdala, its main functions in emotion processing, fear, anger, aggression, and also for the formation of flashbulb memory. ठीक है? Okay. So I hope यहाँ तक सब ठीक। Wonderful. Also it does what, it activates fight or flight response। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, यस, तब ये क्या करता है अमिगडाला, इट एक्टिवेट्स अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। इसलिए हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, वी स्टार्ट टू स्वेट, आवर प्यूपिल्स डायलेट, यस, हमारा डाइजेशन एक तरीके से रुक जाता है, बराबर। ये क्या हो गया, होता है ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज होते हैं जब भी हम स्ट्रेस वाले मोड में चले जाते हैं। तो ये कौन जनरेट करता है? अमिगडाला करता है। यस, plays an important role in facial expression as well। Basically खुद का emotion understanding of self and of others, इसमें अमिगडाला का रोल होता है। बेसिकली दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशंस समझ के उनको क्या लग रहा है ये हमें समझता है। सोशल क्यूज एंड एम्पैथी, आप देखोगे कि बेसिकली जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक स्किज़ोफ्रेनिया में वगैरह क्या होता है, ये जो एबिलिटी होती है लोगों की टू अंडरस्टैंड क्यूज, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये काफी ज्यादा डिमिनिश हो जाती है। नॉट नेसेसरीली फॉर एवरीवन, बट कुछ केसेस में तो यस, यस, एब्सोल्युटली। हाँ, तो इसमें भी अमिगडाला का रोल होता है। एंड दिस इज डायरेक्ट इनपुट फ्रॉम ऑल्फैक्टरी बल्ब, जैसे कि हमने बात की दैट लिंकिंग स्मेल्स विद इमोशनल रिस्पॉन्स। Yes, that the smell is of my school and I am now remembering my old school days, बराबर। Okay, so this was amygdala at play। अभी जैसे कि डैमेज हो जाता है एमिगडाला को, या फिर इसका भी बायलैटरल रिमूवल अगर हम कर दे तो क्या हो जाएगा, क्लूवर बूशी सिंड्रोम हो जाएगा। ये एक टाइप ऑफ डिसऑर्डर है। बाय बायलैटरल लीजन्स अगर भी हो जाते हैं ऑफ एंटीरियर टेम्पोरल लोब्स, जहाँ पे स्पेशली अमिगडाला का इफेक्ट हो जाता है। हाँ, इफेक्ट, हाँ मतलब अमिगडाला पे इफेक्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, स्ट्रोक, इंजरी, इसके वजह से हो जाता है। एंड इसके फंक्शंस क्या होते हैं, हाइपररेलिटी, हाइपरफेजिया, हाइपरसेक्सुअलिटी, विजुअल एग्नोसिया एंड डॉसिलिटी। हाइपररेलिटी मतलब क्या, टेंडेंसी टू एग्जामिन ऑब्जेक्ट्स बाय माउथ। यस, तो यहाँ पे ओरलिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। हाइपरफेजिया मतलब क्या, एक्सेसिव ईटिंग, यस, वो भी बढ़ जाएगा। हाइपरसेक्सुअलिटी, अनयूजुअल सेक्सुअल बिहेवियर्स स्टार्ट टू इंक्रीज। विजुअल अग्नोसिया यानी कि इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स एंड डॉसिलिटी, यानी जो भी इंसान है वो काफी ज्यादा डोसाइल बन जाता है, यानी उसको आप कुछ भी कह लो उसका कुछ भी रिएक्शन नहीं रहेगा उस पर। यस, इमोशनल ब्लंटिंग हो जाती है एक प्रकार से। ओके, लॉस ऑफ फियर और अग्रेशन, ना। तो अगर अमिगडाला का बायलैटरल रिमूवल हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्लूवर बूशी सिंड्रोम हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, हाइपररेलिटी, हाइपरफेशिया, हाइपरसेक्सुअलिटी, विजुअल एग्नोसिया एंड डॉसिलिटी, यानी कि एक तरीके से इमोशंस का चले जाना, ब्लंट हो जाना। ओके, यस। और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हमें पढ़ना है बिकॉज दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस जो होता है ये हाइपोथैलेमस के एकदम ऊपर के हिस्से में होता है। इट्स अ मेजर रिले सेंटर। रिले सेंटर माने क्या,
जो भी हमारे सेंसेस है, whatever information that comes from our sensory modalities, they pass through or relay information to what, to thalamus, ठीक है, except one sense which is the sense of smell. Okay, एक्सेप्ट स्मेल, जो बाकी के सेंसेस है ये कहाँ पे रिले करते हैं इंफॉर्मेशन टू द थैलेमस. ओके, and then thalamus sends sensory information to the appropriate cortical area. Fair enough. So this is the role of thalamus. दूसरा क्या है, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के ऊपर थैलेमस होता है, यानी हाइपोथैलेमस विल बी एट द बेस ऑफ थैलेमस, यस, जस्ट बिलो द थैलेमस. ओके, forms the floor of the third ventricle in the diencephalon. Basically forebrain जो होता है हमारा, उसमें दो टाइप्स होते हैं, मतलब दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन. तो डायनसेफेलॉन में आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस ये सब आता है, थर्ड वेंट्रिकल आता है. ओके, तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या रहता है, होमियोस्टेसिस, एक स्टेट ऑफ बैलेंस बनाए रखना, एंड इन आवर सर्वाइवल बिहेवियर. और बैलेंस कैसे रखेंगे, हमारा बॉडी टेम्परेचर जब मेंटेन रहेगा, थर्स्ट, हंगर्स, हमारा सर्काडियम रिदम यानी कि स्लीप वेक साइकिल्स वो रेगुलेटेड रहना चाहिए. बराबर. ओके, अभी हाइपोथैलेमस के भी तीन रीजन्स कह सकते हैं हम, lateral hypothalamus, ventromedial hypothalamus and anterior hypothalamus. ठीक है, अभी इन पे, हाँ, इन पे कुछ फंक्शंस होते हैं वो हम देखते हैं. lateral hypothalamus का क्या फंक्शन होता है, इन स्टार्टिंग, यानी कि हमें भूख लगना या फिर हमें प्यास लगना, ये कहाँ से शुरू होता है, बाय द एक्टिवेशन ऑफ lateral hypothalamus. yes, it is also called as a feeding center, hunger and thirst feeding center. yes, इसको हम कैसे याद में रखेंगे, लैटरल माने लाइवली ईटर. ठीक है, हाँ, बेसिकली कुछ रैट्स पे स्टडी हुई, और जब रैट्स के लैटरल हाइपोथैलेमस में कुछ लीजन्स बनाए, यस, कुछ लीजन्स बनाए, तो क्या हुआ, यस, yes, absolutely right, as you might have guessed it right. So they stopped getting hungry, they stopped getting thirsty altogether. तो क्या हो गया, aphasia with a G. ओके, aphasia हो गया, एंड ओडिप्सिया. aphasia मतलब क्या, लॉस ऑफ हंगर. ओके, एंड ओडिप्सिया यानी प्यास लगना जो है वो एकदम से बंद हो गया जब वहां पे लीजन आता है, या फिर अगर लैटरल हाइपोथैलेमस को डैमेज हो जाता है तो. ठीक है, ओके. वेंट्रोमिडियल हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक सेटिटी सेंटर है, यानी अगर खाना खाने की शुरुआत जैसे होती है वो बंद भी तो होनी चाहिए, राइट, वेर वी फील दैट ओके बस हो गया अभी, यस, नाउ माय स्टमक इज फुल, वो वाली फीलिंग कैसे आती है, सेटिटी वाली फीलिंग, ड्यू टू आवर वेंट्रोमिडियल हाइपोथैलेमस. ओके, हाँ, सो इट इनहिबिट्स ईटिंग. तो अगर, जैसे रैट्स में इन लैटरल हाइपोथैलेमस में लीजन बनाए, तो वैसे वेंट्रोमिडियल हाइपोथैलेमस में भी लीजन बनाए, और उससे ऐसा पाया गया, देन दे बिकेम ओबीस, ओबेसिटी बढ़ गई, क्योंकि देयर इज नो वन एंड नथिंग टेलिंग यू टू स्टॉप फ्रॉम ईटिंग. यस, तो ओबेसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि हाइपरफेजिया, ज्यादा से ज्यादा खाना खाना हो जाएगा. बराबर, एब्सोल्युटली. एंड जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है ये किसमें इंपॉर्टेंट होता है, थर्मो रेगुलेशन एंड सेक्सुअल बिहेवियर. ठीक है, तो अगर एंटीरियर हाइपोथैलेमस को भी डैमेज हो जाता है या लीजन हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ओ सेक्सुअलिटी, यानी कुछ भी सेक्सुअल बिहेवियर्स में इंटरेस्ट नहीं रहेगा. यस, तो लैटरल लाइवली ईटर, वीएमएच मतलब वेरी मच हंग्री, स्टॉप, बस हो गया अभी, है ना. एंटीरियर यानी क्या, एयर कंडीशनर है ना, मोर. फेयर इनफ. इसको हम इस पद्धति से क्या है रिमेम्बर करेंगे. ओके, तो हमने क्या देखा, वी हैव स्टडीड नाउ सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हाँ, एपिथैलेमस रह गया ना. एपिथैलेमस जो होता है ऐसा एकदम राइस, अपना कैसा होता है राइस का ग्रेन, यस, उतने साइज में बेसिकली यहाँ पे एक पीनियल ग्लैंड भी होता है जो कि एपिथैलेमस का पार्ट होता है, और ये क्या सीक्रेट करता है, मेलाटोनिन सीक्रेट करता है, जो कि हमारी सर्काडियन रिदम यानी कि स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है. जो जो लोग बहुत ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिनको जेट लैग होता है, ये क्या लेते हैं, मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स लेते हैं. यस, शुडंट टेक विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. बराबर. तो ये जो पीनियल ग्लैंड होता है
वो इट इज अ पार्ट ऑफ एपिथैलेमस एंड ये सीक्रेट करता है मेलाटोनिन. ठीक है, दिस इज जस्ट सम इंफॉर्मेशन दैट यू शुड नो बिकॉज दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर लिम्बिक सिस्टम. ओके, वंडरफुल. अभी हमारे 8th इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पे आते हैं एंड आवर लास्ट स्ट्रक्चर फॉर टुडेस क्लास जो कि है बेसल गैंग्लिया. नाउ बेसल गैंग्लिया इज इट जस्ट ओनली वन एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन? नो, इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ मेनी पार्ट्स. बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इसमें, जैसे कि कॉर्डेट न्यूक्लियस है, प्यूटमिन है, ग्लोबल पैलिडस है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस है एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा है. यस, एब्सोल्युटली. सो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है. न्यूक्लियस अकम्बेंस भी होता है इसमें. ओके, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड प्रोसेसिंग. हमें पता है बेसिकली ये मोटर मूवमेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. बेसिकली होता क्या है, जो हमारा मोटर कॉर्टेक्स होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये अच्छे हमारे मोटर मूवमेंट एकदम परफेक्ट बनाता है. इट्स नॉट लाइक दैट. मोटर कॉर्टेक्स सेंड्स इंफॉर्मेशन टू बेसल गैंग्लिया कि ये है हमारी मोटर मूवमेंट, अभी हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसा मूव करना चाहिए. बट दीज मूवमेंट्स आर नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड और वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड. तो बेसल गैंग्लिया टेक्स ऑल दिस इनपुट, इसको थोड़ा क्या करेगा, फाइन ट्यून करेगा, यानी हमारे जो मूवमेंट्स है उनको स्मूथ करेगा, और स्मूथ करने के बाद क्या है, मोटर कॉर्टेक्स को वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा. इसीलिए whenever we walk talk जो भी हम मोटर एक्टिविटी करते हैं, आर मूवमेंट्स आर वेरी स्मूथ एंड फाइन ट्यून. बराबर. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेसल गैंग्लिया. तो मोटर मूवमेंट्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है. एंड ऑब्वियसली लाइक आई सेड, मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड प्रोसेसिंग में भी. यहाँ पे बेसल गैंग्लिया में बेसिकली हैबिट फॉर्मेशन, इसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है. हैबिट फॉर्मेशन एंड एडिक्टिव बिहेवियर्स. आपने सुना होगा कि बेसिकली ड्रग्स की जब आदत लगती है, एडिक्शन लगता है, यस, तो ड्रग कैन वेयर ऑफ, इट्स इफेक्ट कैन वेयर ऑफ, बट वो जो हैबिट होती है, आदत होती है लेने की, यस, वो आदत लग जाती है, वी कैन से. दैट इज ड्यू टू व्हाट, द एडिक्टिव नेचर एंड द प्रेजेंस ऑफ बेसल गैंग्लिया. क्योंकि होता यूं है इन बिहेवियर्स में, जब भी हम ड्रग कंज्यूम करते हैं या फिर सपोज कोई गैम्बलिंग कर रहा है, तो काफी ज्यादा डोपामिन रिलीज हो जाता है. तो डोपामिन रिलीज होने के बाद इन स्ट्रक्चर्स को क्या लगता है दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहेवियर, तो इसकी क्या है, आदत लग जाती है. हैबिट इज फॉर्म्ड इन दिस मैनर. फेयर इनफ. So determines which behaviors are rewarding and hence reinforces those habits. Yes, absolutely. डिसीजन मेकिंग एंड गोल डायरेक्टेड एक्शंस में भी इसका काम होता है. एंड लिंक्स इमोशंस टू एक्शन प्लानिंग वाया द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. ठीक है, तो ये होता है बेसल गैंग्लिया. इसमें काफी ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं एंड दे वर्क टुगेदर एंड स्पेशलाइज इन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन. बेसिकली बेसल गैंग्लिया का एक पार्ट होता है जो कि होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा. इसमें काफी ज्यादा हम कह सकते हैं डोपामिन जो होता है वो सिंथेसाइज होता है, या फिर डोपामिन यहाँ पे बनाया जाता है. बराबर. सब्सटैंशिया नाइग्रा में तो हमें पता है कि जब पार्किंसंस जैसे डिसीज होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो डोपामिन लॉस होता है वो सब्सटैंशिया नाइग्रा में ही होता है. इसीलिए आप देखोगे कि पार्किंसंस वाले जो पेशेंट्स होते हैं, इनका मूवमेंट्स में भी इश्यू हो जाता है, फेस्टिनेटिंग गेट हो जाता है, रेट्रोपल्सिव गेट हो जाता है. बराबर. हाँ, ट्रेमलिंग बिहेवियर्स यानी कि ट्रेमर्स आ जाते हैं. ऑल ऑफ दिस, रिजिडिटी, ब्रैडिकाइनेसिया, जो भी सिम्टम्स है पार्किंसंस के, तो ये डोपामिन लॉस इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा इसके वजह से ही होते हैं. ओके, so basal ganglia is also one of the most important part of your limbic system. Okay, so let us just quickly once again visit all our important structures which are forming a part of your limbic system and emotional regulation. First is our most important and most largest part जो कि है cingulate gyrus या फिर limbic cortex. Then we saw about fornix, we saw about septum, yes, hippocampus, olfactory bulbs, amygdala, yes. Then we talked about all the three types of thalamus, hypothalamus, epithalamus, and lastly we talked about basic ganglia. Okay, so that's about it, and that's all that you should know for your exams. I hope you liked today's class. Okay, yes, ये मैं already आपको बता चुकी. एंड लाइक आई सेड कि हमारे बैचेस के एनरोलमेंट चालू हो चुके हैं. एक बार फिर से आपको बस एक फीचर्स बता देती हूँ बैचेस के क्या है. लाइव क्लासेस मिलेगी आपको. यस, अगर आप बिजी हो
या फिर इंटर्नशिप्स पे जाते हो, कॉलेजेस अटेंड करते हो, तो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो आप अपने पेस पे, बराबर। यस, you'll also get curated books and study material for your entrance exams. हमारा जो ऐप है या फिर वेब पोर्टल है, इट्स वेरी इजी टू नेविगेट थ्रू, सो यू कैन एक्सप्लोर और अलग अलग तरीके के क्लासेस एंड बैचेस। मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, सो यू कैन टाइमली चेक योर परफॉर्मेंस एंड कंपेयर इट। यस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी राउंड 2 की जो प्रेप होती है, इंटरव्यू की प्रेप, वो भी हम आपसे कराएंगे, ठीक है। तो इतने सारे फीचर्स से एंड विथ योर हार्ड वर्क यू कैन अचीव एक्सीलेंस। तो ये है हमारे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2025 में दे हैव रॉक्ड इट। यस, एंड दिस हैज बीन हैपनिंग फ्रॉम 4 years now. These are all our toppers, and if you find yourself on this board, yes, or if you want to be on this board, then you know what to do. ठीक है? Okay. If you always want to be up to date in psychology ki dunya, then you have to join our WhatsApp channel and Telegram channel, where we post every day every new updates that come in this field. Okay, we are, yes, available on all social media platforms. And अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको रिसर्च या फिर एकेडमिया पार्ट ऑफ साइकोलॉजी में जाना है, देन वी हैव अ फैकल्टी फेलोशिप प्रोग्राम। वो क्या है, इसको जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, वी विल कम अप विद मोर सच कंटेंट। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए हमसे, देन यू लेट अस नो अबाउट दैट। ओके, आई विल सी यू वंस अगेन एंड आई होप यू हैव अ गुड डे। बाय बाय।